کوشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کوشا سے یہ سینہ چلو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، الحمدللہ سیزن 16 ہے، اور آج اس سیزن 16 کا چوتھا مقابلہ ہے۔ آج 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ تینوں ٹیمیں ہمارے منچ پر موجود ہیں، اور ایک اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ تینوں ٹیمیں ہی جنوبی پنجاب کی ہیں، بھاولپور، خانپور اور ملتان، قریب قریب یہ شہر ہیں، مگر آج تینوں ایک ساتھ منچ پر آ گئے ہیں۔ اور ہاں یہ بتاتا چلوں کہ اب ان کے پاس آج یہ آخری موقع ہے، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب جو ٹیم پیچھے رہ جائے گی اس کو آج ہمیں الوداع کرنا ہوگا، مگر اسے ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ الحمدللہ بہت پیارے تحائف ہوتے ہیں جب ٹیمیں ہم سے رخصت ہوتی ہیں، ہم انہیں وہ تحائف بھی دیتے ہیں، دعائیں تو آپ سب دیتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں انہیں دعائیں دیں۔ بہرحال آپ ناظرین اور موجود حاضرین تیار ہو جائیں، انشاءاللہ آپ سے بھی سوالات ہوں گے، اور وہ سوالات انشاءاللہ جوابات آپ دیں گے تو آپ کو بھی اس کے تحائف ملیں گے۔ آئیے مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن۔ ماشاءاللہ بھاولپور، ملتان اور خانپور کے اسلامی بھائی ہیں۔ دائیں طرف بھاولپور کے اسلامی بھائی ہیں، باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور کیا مصروفیات ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ میرا نام محمد رمضان، والد گرامی کا نام محمد ارشاد، اور میں بھاولپور ادارہ مصباح القرآن میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں درجہ خامسہ میں۔ ماشاءاللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سلمان رضا اتاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام محمد امیر بخش ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عباسیہ ٹاؤن بھاولپور میں درجہ سابعہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ میرا نام محمد فیصل اتاری ہے، اور میرے والد صاحب کا نام محمد خان ہے، اور میں جامعۃ المدینہ چشتیہ شریف میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی، ملتان کے اسلامی بھائی۔ میرا نام محمد حسن ولال اتاری بن محمد اعجاز قادری، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ لیہ میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد راحل گلزار بن گلزار احمد ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ میرا نام حافظ منیب اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام قاری محمد عابد ہے، اور میرا تعلق ملتان شریف سے 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ حافظ صاحب کو لگتا ہے آج نیند بھی آ رہی ہے۔ حافظ صاحب آج آپ نے نیند میں نہیں، فریش رہنا ہے انشاءاللہ جی۔ خانپور کے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ریحان اتاری بن محمد رمضان ہے، میں جامعۃ المدینہ حمزہ شکر مل جیٹھا بٹھا تحصیل خانپور میں درجہ خامسہ یعنی 5th ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالباسط اتاری بن محمد ارشد ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کھڑیاں والا فیصل آباد میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منظور احمد اتاری، والد صاحب کا نام بشیر احمد ہے، اور میں جامعۃ المدینہ حمزہ شوگر مل جیٹھا بٹھا کلاس سادسہ کا طالب علم ہوں۔ جناب خانپور کے، ملتان کے اور بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کا جو تعارف تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین، ہم ہر سلسلے میں آپ سے آخر میں ایک سوال کر کے جاتے ہیں جس کا جواب اور پھر قرآن دازی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے کہ کل سلسلے میں کیا سوال کیا گیا تھا، جواب درست کیا تھا، کن کن لوگوں نے صحیح جواب دیا، اور تحفہ کنہیں ملنے جا رہا ہے جی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام بتائیں، تو جواب ہے ام رومان۔ ہمارے پاس کئی جوابات آئے، ان میں سے چند کے نام بتا دیتا ہوں۔ بنت محمد ارشد اتاریہ بنت عبد المالک اتاریہ، محمد طارق صحبت پور بنت نواب علی اتاریہ، سلمان بنت علی سکھر بنت رحمت علی، محمد فہیم رضا قادری یزمان بنت غلام غوث اتاریہ میاں والی، ام صدام اتاریہ حیدر حیدرآباد بنت شکیل اتاری کراچی۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے درمیان قرآن دازی ہوگی۔ اور جو ہمارا تحفہ ہے وہ سندھ کے شہر سکھر میں جا رہا ہے۔ بنت علی سکھر، آپ اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کیجئے،
इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफा आप तक पहुंचाया जाएगा। माशाअल्लाह। चले जनाब, ये भी हो गया। अब नाज़रीन आइए चलते हैं, कल एक सिलसिला हुआ, बड़ा कमाल का सिलसिला हुआ, गालिबन सरगोदा और खानपुर के दरमियान था। क्या नतीजा रहा, कैसा सिलसिला हुआ, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, सीजन है 16 और ये आज तीसरा मुकाबला है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। मुसीबत ज़दों का सवाब किस कदर ज्यादा है? क़यामत के दिन हाजियों और नमाजियों को तो सवाब तोल कर दिया जाएगा, लेकिन मुसीबत ज़दा को इतना सवाब दिया जाएगा बेतुले कि क़यामत के दुनिया के अंदर जो लोग आराम से रहे वो ये तमन्ना करेंगे कि काश हमारे गोश्त कैंचियों से कुतरे जाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर उनके ख्याले वतन मिटाना था। हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल, हम आप मिट गए अच्छा फराग बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर का फर्क है। अब खानपुर के 38 हैं, सरगोदा के 40 हैं। सरगोदा के इस्लामी भाई अब अगर ज्यादा नंबर लेते हैं तो खानपुर के लिए मुश्किल हो जाएगी। बगदाद मुअल्ला यमन का मशहूर शहर है। कश्फुल महजूब इमाम गजाली की मशहूर किताब नहीं है। सही। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम अब्दुल रहमान है। सही। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए कि मकरूह है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अनबिलीवेबल, कमाल का मुकाबला किया खानपुर वालों ने, मगर आज का मुकाबला सरगोदा वाले जीत गए हैं। एक मौके पर लग रहा था खानपुर वाले मुकाबले में शानदार तरीके से वापस आए हैं, मगर फ्रॉम द स्टार्ट सरगोदा की टीम बड़ी अच्छी थी और जनाब 3 नंबर से आज सरगोदा वाले आगे बढ़ गए हैं। नाज़रीन, अब तक मुकाबले बड़े क्लोज हुए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर से टीमें पीछे रही हैं। तो आज तीनों टीमों को मेरा एक मशवरा है कि चूंकि सवालात कम होंगे, टीमें 3 हैं, तो हमें उसी वक्त में ये मुकाबला पूरा करना है। तो अब गलती की गुंजाइश कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती ना हो, क्योंकि जैसे ही कोई नंबर पीछे हो जाएगा उसको रिकवर करना ऐसा ना हो आगे जाके मुश्किल हो जाए। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है, एक सवाल हम आपसे करते हैं जिसका मैसेज के जरिए आपने जवाब देना है, SMS के जरिए जवाब देना है। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से क्या दुआ करवाते थे? सवाल यह है कि इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बच्चों से क्या दुआ करवाते थे। और एक सवाल हम करेंगे ज़हनी आजमाइश क्विज एप्लीकेशन के जरिए जिसका आपने जवाब देना है कि उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में विसाल किन का हुआ? हजरत आयशा, हजरत हफ्सा, हजरत खदीजा या हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा? इन चारों में से किसका सबसे आखिर में विसाल हुआ? ये जवाब आपने ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन पर जाकर जो प्रॉपर जवाब है उसको आपने वहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपनी ID का नंबर भी याद रखना है ताकि फिर जब इनाम का ऐलान हो तो आपको पता चल जाए कि आपका नाम आया कि नहीं आया। अब बारी है, आपको ये बताएंगे कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, नामों की दुनिया, जुमला दुरुस्त कीजिए, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर से आया है। जनाब भावलपुर वालों से करेंगे पहला सवाल। इस सेगमेंट में तीनों टीमों से 5-5 नहीं बल्कि 3-3 सवाल होंगे। भावलपुर वालों से पहला सवाल है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु तलब इल्म के मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इल्म तलब करो कबल इससे कि अहले इल्म इंतकाल कर जाएं। इल्म हासिल करो कबल इसके कि अहले इल्म इंतकाल फरमा जाएं। इल्म हासिल करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों से सवाल है, एक गैर मुस्लिम ने किसी बुजुर्ग से कहा कि आपके कुरान में तिब के हवाले से कुछ भी बयान नहीं हुआ। तो इस सवाल पर उन बुजुर्ग ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सिर्फ आधी आयत में ही पूरे इल्म तिब को बयान फरमा दिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू,
खाओ पियो और इसराफ ना करो, क्योंकि बीमारियां खाने पीने की बेइतदालियों की वजह से होती हैं। मेडिकेशन जो है, जिसको हम मेडिकल की साइंस कहते हैं, सवाल हुआ कि कुरान में तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है, तो क्या कमाल की बात फरमाई कि अल्लाह करीम ने तो आधी आयत में पूरा इल्म तिब, पूरी मेडिकल साइंस बयान फरमा दी कि खाओ पियो और इसराफ ना करो, क्योंकि नॉर्मली जितनी बीमारियां उमूमन होती हैं वो खाने पीने की बेइतदालियों की वजह से होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हौज़े कौसर का सिर्फ एक कतरा किस कदर अजीम है। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हौज़े कौसर का सिर्फ एक कतरा क़यामत के दिन जिस हल्क में जाएगा, तो क़यामत के दिन जो कि 50,000 बरस का एक दिन होगा, वो भूख और प्यास से महफूज रहेगा। जिसके हलक में हौज़े कौसर का सिर्फ एक कतरा जाएगा, क़यामत के दिन जो कि 50,000 बरस का एक दिन है, भूख और प्यास से महफूज रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस एक कतरे से तो आला हजरत का वो शेर याद आ गया कि क्या खूबसूरत इल्तिजा की है आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। क़यामत के दिन जब जामे कौसर बट रहे होंगे ना, तो आला हज़रत कहते हैं हुजूर वो तो नेकों को मिलेंगे, आपके पसंदीदा बंदों को मिलेंगे, मैं तो गुनाहगार हूँ। जाम मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर एक कतरा भी मिल गया तो काम बन जाएगा। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। सुभान अल्लाह। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये बड़ी कमाल की हमें आज बात पता चली कि एक कतरा भी जो होगा वो इंसान को क़यामत के दिन भूख और प्यास से महफूज कर देगा। अल्लाह नबी पाक के हाथों हम सबको जामे कौसर नसीब फरमाए। अब सवाल करेंगे एक बार फिर भावलपुर वालों से, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह तआला के दादा का नाम क्या था और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तब्दील फरमाकर क्या नाम रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा का नाम हुज़न था और आका अलैहिस्सलाम ने तब्दील फरमाकर सहल रखा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह तआला के दादा का नाम हुज़न था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तब्दील फरमाकर सहल फरमा दिया। याद रहे कि प्यारे आका उन नामों को तब्दील कर दिया करते जिनके माना दुरुस्त नहीं होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस प्रोग्राम में भी एक सेगमेंट रखा है नामों की दुनिया, ताकि अवेयरनेस पैदा हो कि अच्छे नाम रखने चाहिए और जिन नामों के माना ही अजीबो गरीब हों उनसे बचना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिस वक्त हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पुल सिरात से गुजरेंगी, उस वक्त मुनादी यानी ऐलान करने वाला क्या निदा करेगा, क्या अनाउंसमेंट करेगा? आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पुल सिरात से गुजरेंगी तो उस वक्त निदा की जाएगी कि अहले महशर अपने सरों को झुका लें और अपनी आंखें बंद कर लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा पुल सिरात से गुजर रही हैं और आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ 70,000 हूरें होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब जरा गौर करें कि खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का आलम क्या है कि क़यामत के दिन भी जब आपकी सवारी गुजरेगी तो अहले मैशर को कहा जाएगा निगाहें नीची करें, आंखों को बंद करें। तो जो हमारी इस्लामी बहनें हैं, जो मुसलमान ख़वातीन हैं, उनको पर्दे की कितनी फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह उन्हें भी हया की चादर नसीब फरमाए। खानपुर वालों की बारी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ہم ہمیشہ معزز رہے. کیا بات ہے، جب سے آپ مسلمان ہوئے ہیں ہم ہمیشہ معزز رہے. آپ کو اعز الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے. فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی عزت میں اضافہ ہو گیا. کیسی عظیم ہستی ہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. اب بھاولپور والوں سے سوال ہوگا. اب یہ تینوں ٹیموں سے ایک ایک سوال جو ہونا ہے یہ آپشن بیسڈ کوسچن ہے. آپ چاہیں گے تو آپشن لیں گے، بغیر چاہے جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، اور آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا. سوال بھاولپور والوں سے ہے، قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ چاہیں تو آپشن لے لیں اور چاہیں تو بغیر آپشن کے جواب دیں. آپشن لے رہے ہیں. اللہ کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 1 نمبر دیا جائے گا انہیں. ملتان والوں کی باری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا نام بتائیں جن کی تلاوت سن کر حضرت عمر فاروق دائرہ اسلام میں شامل ہوئے. جواب دینا چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، آپشن لینا چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب. 3 آپشن تھے اس میں، حضرت فاطمہ، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ. آپ نے کہا حضرت فاطمہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ملتان والوں نے. اب خانپور والوں کی باری ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی؟ دن بتانا ہے، تاریخ نہیں، دن بتانا ہے. آپشن بھی لے سکتے ہیں یا جناب بغیر آپشن کے جواب بھی دے سکتے ہیں. جمعے کے دن. آپ نے کہا جمعے کے دن. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. خانپور والوں نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. تھوڑا سا سکور بورڈ میں فرق آیا ہے. آپ کو سکور بورڈ دکھائیں گے مگر وقت ہوا ہے یہاں موجود حاضرین سے بھی کچھ سوال کرنے کا اور انہیں بھی کچھ انعامات دینے کا. جی سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین کا نام کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد آفتاب اتاری ہے اور آپ کا نام سجاد تھا. جی بتائیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام عبید رضا ٹھٹھا سے. آپ کا نام علی بن حسین تھا. جناب بڑا مشکل سوال کر لیا آپ نے. آپ کا نام علی بن علی اوسط تھا. ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو انشاءاللہ عز و جل 156 صفحات پر مشتمل کتاب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت یہ تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. جی اچھا جی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں پر ہے؟ بچوں کے لیے سوال ہے. جی بغداد شریف. بغداد شریف میں آپ گئے؟ اللہ آپ کو لے جانا نصیب فرمائے. ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو انشاءاللہ عز و جل سوغات مدینہ تحفے میں دی جائیں گی. ماشاءاللہ. سوالات بھی ہو رہے ہیں، جوابات بھی ہو رہے ہیں اور تحائف بھی تقسیم ہو رہے ہیں. آئیے جناب ایک کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حسن محمد رمضان اتاری چشتیاں شریف سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم پچھلے سالوں میں آ گئے.
वही जज्बा, वही हाजी साहब आपका हाथ उठाकर जवाब दुरुस्त है, दिल की धड़कनें तेज करने वाला अंदाज और साथ में नात खानों के अशआर चार चांद लगाती, और सैयद साहब का जवाब देने में तोहफा देने का अंदाज, मरहबा मरहबा। और सब इस दफा जो आपने स्टेज बनाया ना, वो तो कमाल है, यानी रोशन चेहरे वालों के साथ रोशन रोशन नजर आ रहा है। अल्लाह पाक इस ज़हनी आज़माइश प्रोग्राम को मजीद तरक्की दे और हमें मजीद इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वैसे सही बात है कि आपका हौसला अफजाई का अंदाज भी कमाल 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 है माशाल्लाह। ये भी एक अंदाज होता है कि किसी के दिलों में खुशी दाखिल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह हमारी ज़हनी आजमाइश की पूरी टीम को सलामत रखे। आइए नाज़रीन चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। करके अब एक खून और पसीना चलो। 6 नंबर मुल्तान, 5 नंबर भावलपुर, फिर 6 नंबर है खानपुर के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। इश्क के बोल सेगमेंट में अब तीनों टीमों से 3-3 अशार पूछने हैं। देखते हैं कि कौन सही अशार बताते हैं। पहला शेर सुनेंगे मगर उसकी सेकंड लाइन आपके सामने हम बयान करेंगे। भावलपुर वालों सवाल है, सारी बहार हुश्त, सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। बज़्म सनाए जुल्फ में मेरे उरूस फिक्र को सारी बहार हिश्त खल्द छोटा सा इत्रदान। बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरूस फिक्र को सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सहाबे सुखन से न मैं के नम से भी कम, तेरी सहाब सुखन से नन मैं के नम से भी कम, बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले। इतना मुश्किल शेर है मगर फिर भी सुना दिया है। बलीगे बहरे बलागत बलाग लेके चले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुनता हूं इश्क शाह में दिल होगा खूफिशां, सुनता हूँ इश्क शाह में दिल होगा खूफिशा, या रब ये मुज्दा सच हो मुबारक हो फाले गुल। या रब ये मुज्दा सच हो मुबारक हो फाले गुल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बुलबुल हरम को चल गमे फानी से फायदा, बुलबुल हरम को चले गम फानी से फायदा, कब तक कहेगी है गुंचो दलाल गुल। कब तक कहेगी हाय वो गुंचो दलाल गुल, जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही अर्ज है खालिके अर्ज़ो समा, वो रसूल है तेरे मैं बंदा तेरा। अच्छा मुल्तान वालों की बारी है जी। यही अर्ज है खालिके अर्ज़ो समा, वो रसूल है तेरे मैं बंदा तेरा। मुझे उनके जवार में दे वो जगह है खुल्द को जिसकी सफा की कसम, मुझे उनके जवार में दे वो जगह के है खुल्द को जिसकी सफा की कसम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। यही अर्ज है खालिके अर्ज़ो समा, रसूल है तेरे मैं बंदा तेरा। मुझे उनके जवार में दे वो जगह, मुझे उनके जवार में दे वो जगह, मुझे उनके जवार में दे वो जगह के खुल्द को जिसकी सफा की कसम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान गया।
मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं खुदा की कसम। तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। क्या खूबसूरत शेर है। नबी पाक की शान कितने कमाल के अंदाज में इस कलाम में आला हजरत ने बयान फरमाई। हर शेर के आखिर में कसम भी खाई है, मगर कमाल की कसम खाई है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूर अफजा की कसम। कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम। यानी स्टार्ट कहाँ से किया कि अल्लाह ने नबी पाक के कलाम की कसम खाई है, रब ने नबी पाक की जुल्फों और नबी पाक के बारे में जो कस्में खाई, नबी पाक उसको बयान आला हज़रत उसको बयान कर रहे हैं। अब इस कलाम इस शेर में क्या फरमाया कि आपकी शान ये है, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। रूहुल अमीन कौन थे? जिब्रील अमीन। नबी पाक राज की बातें किससे करते थे? नबी पाक के साथी कौन है? रूहुल अमीन है। और नबी पाक की बैठने की जो मसनद है, स्टेज जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? अर्श बरी। हुजूर आपकी शान यह है कि तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह ने जैसा इस आका अलैहिस्सलाम को बनाया, ऐसा किसी और को बनाया ही नहीं, और कैसे कैसे कमालात से नवाजा। सुभान अल्लाह। अब शेर पढ़ेंगे, पूरा करेंगे हमारे मुल्तान वाले जी। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा, गश आ गया। किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा, गश आ गया, और अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। और अभी मंजिलों पर पहला ही आस्तान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, एक बात की वजाहत कर दूं कि जब भी हम ये जुमला कहेंगे कि अल्लाह ने कसम, तो अल्लाह के लिए कसम खाने का लफ्ज नहीं कहेंगे। अल्लाह ने कसम याद फरमाई, अल्लाह ने कसम जिक्र फरमाई, तो इस तरीके से इसको बयान किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। जनाब, हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। आए हाय हाय, क्या पैगाम है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है कि झूठे हीला और मकरो फराग लेके चले। कि झूठे हीला मकरो फराग लेके चले। कमाल की बात की है। आला हजरत का ही कलाम है ये है? अब इसमें आला हजरत कहते हैं कि मदीने जाने या नबी पाक की बारगाह में जाने के अलावा भी कोई अहम काम है? मदीने के अलावा की बातें करते हो, बहाने करते हो, पहले ये काम हो जाए, फिर वो हो जाए, जरा मसला हल हो जाए, फिर जाना है। अरे इससे बढ़कर और कौन सा काम। एक और जगह आला हजरत कहते हैं, फिर न करवट ली मदीने की तरफ। अरे चल झूठे बहाने वाले हैं, लोग बहाने बनाते हैं। सच्ची बात यह है, मदीने ना जाने के बहाने नहीं करना चाहिए, मदीने जाने के बहाने करने चाहिए कि यार ये काम हो जाए, मदीने चलते हैं, ये मसला है, चलो मदीने चलते हैं, आसानी हो गई, चलो मदीने चलते हैं। मदीने जाना है। जहन में एक ही शौक होना चाहिए, एक ही फिक्र होना चाहिए। शायर कहते हैं, इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर। इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, कि चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। ये शेर तर्ज में सुना दें। हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। चले
माशाल्लाह। यहाँ तो तीनों टीमों ने अशार पूरे पूरे सही सुनाए हैं। अब देखें यहाँ मौजूद इस्लामी भाई सही सुनाते हैं कि नहीं सुनाते, इनकी बारी है। आला हजरत का मक्ता सुनना है आपसे। ए रजा जाने अना दिल तेरे नगमों पे निसार। अंदली की जमा है अनादिल, बुलबुलों की जाने ए रजा तुम्हारे नगमों पे निसार। खुद आला हजरत कह रहे हैं, देखिए कैसे ज़ौक़ में शेर लिखा है। ए रजा जाने अनादिल तेरे नगमों पे निसार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम ए रज़ा जाने अनादिल तेरे कदमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना। हाय हाय, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। वाकई आला हजरत ऐसे हैं कि बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ए रज़ा जाने अनादिल तेरे नगमों के निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे। ये भी आला हजरत का बड़ा खूबसूरत मक्ता है। जो 3 दिन के मदनी काफिले की नियत करते हैं वो जवाब देंगे। चलें, आप तोहफा तारीख के साथ 3 दिन मदनी काफिला होना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो तोहफा इंशाल्लाह इनको सौगात मदीना और मुबारक पानियों का मजमूआ पेश करेंगे। क्या बात है। तो 12 दिन ना कर, चले ठीक है, 3 दिन चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अच्छा जनाब, अब एक और शेर सुनना है आपसे, और वो शेर क्या है। चलें, एक ऐसा शेर है जो आला हजरत बड़ा दिलासा देता है। वो शेर उन लोगों को बिलखुसूस दिलासा देता है कि जब हम दीन का काम करते हैं और लोग मुखालिफत करते हैं, लोग जनाब हमारे उस काम से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। या रसूलुल्लाह कहें तो प्रॉब्लम है, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती कहें तो मसला है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी कहें तो प्रॉब्लम है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आला हजरत कहते हैं उनका काम वो करते रहें, हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमारे इस काम से किसी को तकलीफ होती है तो हम उसकी तकलीफ में इजाफा ही करते चले जाएंगे। क्या कहते हैं, फरमाते हैं, क्या शेर है वो? हाँ, नहीं, वो बड़ा प्यारा शेर है कि दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है। दिल आदा को रजा, आदा कहते हैं दुश्मनों को, दिले यानी दुश्मनों के दिल को थोड़ी नमक की और लगता है हाजत है, क्योंकि जख्म पर आप नमक छिड़के तो तकलीफ होती है ना। दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। मैंने तो खैर पूरा ही शेर सुना दिया, ठीक है ना। चलें दूसरा शेर सुना दे आप। तो ये शेर बड़ा कमाल का है, लेकिन अब दूसरा शेर सुन लें आला हजरत का। चलें, मक्ते की बात चली है तो मक्ता ही सुनते हैं ना आला। रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। चले ये मुक्ता पूरा कर दे। रजा नफ्स से चलें, जिनको पहले खड़ा किया था अगर उनकी बारी उनको याद हो तो उन्हीं से पहले सुन ले उनकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हसनैन आबिद। रजा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्र आने, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्र आने वाले। क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 505 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब गीबत की तबाहकारियाँ, जिसमें मौजूद है गीबत एक नज़र में, नाबालिग की गीबत भी होती है, गीबत की 12 जायज़ सूरतें, गीबत के बारे में सवाल जवाब, और भी बहुत कुछ है। ये आप घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं और यहाँ पे इनको तोहफे में दी जा रही है। माशाअल्लाह, मकतबतुल मदीना से वाकई ये किताब हासिल करें, और इसके इंग्लिश ज़बान में बैक बाइटिंग के नाम से ट्रांसलेशन भी आ चुका है। तो बैरून मुल्क के आशिकान रसूल भी हासिल करें और इस बीमारी से नजात भी हासिल करें। चले जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 12 नंबर मुल्तान, 11 नंबर भावलपुर और 12 नंबर ही खानपुर वालों के हैं। मुकाबला बड़ा क्लोज जा रहा है नाजरीन। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं।
तो मेरा नाम हुसैन रजा है, मैं बिहारी से बात कर रहा हूँ। मैं आज हाजी अब्दुल हबीब अंकल से सवाल करूँगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे कोई ऐसी नात सुनाएं जिसमें मदीना लफ्ज़ 4 बार आता हो। आपके पास 20 सेकंड हैं। नात सुनाएं या शेर सुनाएं? मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। चलें, अब एक और कॉल दे दे भाई। अभी आप मुझसे सवाल शुरू हो जाते हैं भाई। चलें। मेरा नाम आनिया है, मैं बखर से बात कर रही हूँ। मैं ज़हनी आजमाइश में टीम मुल्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, ज़हनी आजमाइश का नया कलाम कब आएगा? ज़हनी आजमाइश का नया कलाम इंशाल्लाह आज के बाद जो अगला प्रोग्राम आप देखेंगे संडे को, इंशाल्लाह नियत है कि उस दिन इसको हम रिलीज कर देंगे इंशाल्लाह। ज़हनी आजमाइश का तो नया कलाम आएगा ही आएगा। तो आप फाइनल में कुछ खुशखबरी भी आती है आपके पेज से, आपका एक कलाम भी दावत इस्लामी के पेज से भी रिलीज होता है, क्या उसकी भी कुछ तैयारियां वगैरह चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कलाम भी इंशाल्लाह फाइनल में हम रिलीज करेंगे और अल्लाह ने चाहा मेरे दिल के भी बड़ा करीब है, बल्कि मैं कहूँ करोड़ों के दिल के करीब है वो कलाम, क्योंकि उसमें जो जिक्र है, जो अंदाज है, यकीनन हम सबके दिलों की तमन्ना है। तो इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश के फाइनल में हम इंशाल्लाह एक नया नातिया कलाम भी इंशाल्लाह रिलीज़ करेंगे। इंशाल्लाह इस इतवार को इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश का कलाम रिलीज़ हो जाएगा। बल्कि चलें अपकमिंग एक कलाम के बारे में बताता हूँ, चूँकि आज मदनी रज़ा हमारे साथ हैं, बहुत प्यारी आवाज़ अल्लाह ने इनको दी है, तो इन्होंने मुझे शरफ़ बख्शा है। एक कलाम हमने और रिकॉर्ड किया है जो मदनी भाई के साथ मेरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और वो अरबी और उर्दू कलाम है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कलाम है। वन ऑफ ब्यूटीफुल कलाम है। इंशाल्लाह हो सकता है कुछ दिनों के बाद या ज़हनी आजमाइश के कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह उस कलाम को भी रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह। चले जनाब, अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सबसे आखिरी नबी। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब भावलपुर से सवाल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है नाज़रीन, इस सेगमेंट को तवज्जो से आपने भी देखना है, अपने बच्चों को भी दिखाना है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस सेगमेंट के शॉर्ट क्लिप्स भी बाद में जारी करेंगे, ताकि अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मज़ीद हमारे अंदर पुख्तगी आए और हमें अपने अकीदे के बारे में ज़्यादा मालूमात हो। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम को किन 6 वजूहात की वजह से दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जामी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 वजहों की बिना पर तमाम अंबिया पर फजीलत दी गई है। नंबर 1, मुझे जामी कलमात अता किए गए और मेरी मदद रौब से की गई और मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया और तमाम रूए ज़मीन को मेरे लिए तहारत और नमाज की जगह बना दिया गया और तमाम मखलूक की तरफ मुझे नबी बनाकर भेजा गया और नंबर 6, सबसे आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। जनाब ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, मुझे 6 वजह से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई। नंबर 1, मुझे जामे कलिमात अता किए गए। नबी पाक जवामिउल कलिम हैं। मेरे आका कहते हैं ना, कूजे में दरिया को बंद कर देना, नबी पाक को ऐसे खूबसूरत कलिमात अता किए गए। फिर फरमाया, मेरी मदद रोब से की गई, मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया, तमाम रुए ज़मीन को मेरे लिए तहारत और नमाज की जगह बना दिया गया। नंबर 5, मुझे तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। और छठी फजीलत क्या फरमाई, मुझ पर नबियों के सिलसिले को ख़त्म किया गया, यानी नबी पाक सबसे आखिरी नबी हैं। मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों से सवाल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक नाम आकिब भी है, बताएं आकिब के क्या माना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे 5 नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ यानी मिटाने वाला हूँ, यानी अल्लाह पाक मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाएगा, और मैं हाशिर हूँ यानी कि लोग क़यामत के दिन मेरे पीछे खड़े होंगे, और मैं आकिब हूँ। और इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि आकिब का माना है कि सबसे आखिरी नबी, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं, जिसके बाद कोई नबी नहीं उसको आकिब कहा जाता है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को किस वक्त खातमुन नबिय्यीन लिखा गया था?
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی میں گندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اس وقت بھی میں خاتم النبیین لکھا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندھے ہوئے تھے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں نہ ہم پھر ذوق و شوق کے ساتھ یہ نعرے لگائیں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے عطار کا. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو. سلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو. یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی 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 لا نبی آبادی. ارتقائے عالم کر دیا خدا نے صرف نام ان کے. ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا جو غلام ان کے. جوادی وادی آپ کی منادی جوادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہے دو سرا سب سے آخری نبی تاجدار اولیاء سب سے آخری نبی 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 آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب اب اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ناموں کی دنیا. نور ہی نور ہے علم یہ نور ہے سے آیا ہے. جناب آج تینوں ٹیموں کے سامنے ایک ایک بورڈ ہوگا جس میں انہوں نے 2 منٹ کا ٹائم ہوگا اور ناموں کے ساتھ ساتھ معنی بھی بتانا ہے اور نسبت بھی بتانی ہے. 2 منٹ کا ہی ٹائم ہوگا. 2 منٹ کا ٹائم. چلیں جناب خانپور والے اس بورڈ پر آ جائیں اور ملتان والے ادھر آ جائیں اور ہمارے تیسرے بھائی جو ہیں بھاولپور والے ادھر آ جائیں. انشاءاللہ آپس میں مشورہ نہیں کریں گے, اپنی طرف سے کوئی ایک اسلام بھائی بھیجیں. آ جائیں. جب آپ یہاں آ جائیں گے تو پھر آپ نے طریقے سے تسلی سے 2 منٹ کے اندر آپ نے ناموں کے آگے, پہلے میں نام بتا دیتا ہوں ذرا ہمارے کیمرامین بھائی فالو کریں. عطا, عقیل, عرفان, جیون, عزیر, یہ 5 نام ہیں جن کے معنی بھی بتانے ہیں, جن کی نسبت بھی بتانی ہے. اچھا یہاں جو نام ہے ملتان والوں کے لیے نجیب, یعقوب, خلیل, زبدہ,
और दीदार। चले जनाब, अब ये जो नाम है मसऊद, थोड़ा सा आगे हो जाएगी बेटा, मसऊद, कफील, मतीन, हाजिम और अनीस। ठीक है जनाब, आपको 15 नामों के आज माना पता चल जाएंगे, निस्बत पता चलेगी। आप सबका वक्त शुरू होता है अब। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल को जनाब टीमें कोशिश कर रही हैं, इस्लामी भाई कोशिश कर रहे हैं, जरा जोर से पुश कीजिएगा ताकि वो नाम नीचे ना गिरे। 5 नंबर का ये सेगमेंट है। किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई है, किस्मत यहाँ मुल्तान, खानपुर और भावलपुर। खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का कोशिश जारी है। तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, नूर ही नूर है। जनाब 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट बाकी है। चेक भी करते रहें, जल्दी में कहीं किसी का माना किसी के आगे ना लगा देना। 45 सेकंड्स बाकी हैं, बहुत करीब पहुंच गए हैं। जनाब खानपुर वालों ने तो तकरीबन बोर्ड कंप्लीट कर दिया है, भावलपुर वाले भी कुछ करीब ही हैं, तलाश जारी है। चलें जनाब, कानपुर वाले पूरा कर लिया आपने? चलें, अभी 20 सेकंड रह गए हैं, बाकियों को भी मौका देते हैं। मुल्तान वालों को एक स्लाइड की तलाश है, मुल्तान वालों ने भी कर लिया। एक बार और पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपके पास 10 सेकंड हैं, रीचेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है जनाब। 3, 2, 1 और टाइम पूरा हो गया है। चलिए जनाब, अब आते हैं हम इंशाल्लाह खानपुर वालों की तरफ। जरा कैमरामैन बोर्ड को फॉलो करेंगे, अब अपने बोर्ड के पास ही रहेंगे, अपने बोर्ड के पास ही रहेंगे। अता, अता का माना है बख्शिश, इनाम, और मशहूर ताबी बुजुर्ग हज़रत सैयदना अता बिन रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। अच्छा जनाब, अकील, अकील के माना दाना और ज़की हैं, शाम के बाकरामत वलीउल्लाह हैं हज़रत सैयदना अकील। इरफान शनाख्त और पहचान को कहते हैं, और हज़रत खलीफा आला हज़रत मौलाना इरफान अहमद बेसलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जीवन, ज़िंदगी, हयात और वजूद को कहते हैं, और तफसीरात अहमदिया के मुसन्निफ जो मुल्ला जीवन के नाम से मशहूर हैं। उज़ैर मददगार को कहते हैं, और ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत उज़ैर हैं। जनाब इन्होंने 5 जवाब दिए हैं, और 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं, 5 नंबर हासिल किए हैं जनाब। मुल्तान वालों की बारी है। नजीब, अच्छे नसब वाला, पसंदीदा, और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम भी है, सुभान अल्लाह। याकूब का माना है ताक़ुब करने वाला, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। खलील कहते हैं सच्चे दोस्त को। खलील मिल्लत मुफ्ती अहमदिया, मुफ्ती खलील खान बरकाती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हैं। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी हैं। जुबदा, अच्छा जुबदा जनाब इसके माना बनते किसी चीज़ का बेहतरीन हिस्सा, बरगुज़ीदा। सैयदना बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहन का नाम था। दीदार, जलवा, नज़ारे को कहते हैं, और आला हज़रत मौलाना खलीफा आला हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। मुल्तान वालों ने भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। नामों की दुनिया सेगमेंट, अब बारी है भावलपुर वालों की। मसऊद, मसूद कहते हैं सआदतमंद को, और ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नाम है। कफील, किफालत करने वाला, और ये भी प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम है। मतीन, मजबूत को कहते हैं, सुभान अल्लाह, ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम है। हाजिम, ये कहते हैं दूर अंदेश, तेज नजर वाले को, सहाबी रसूल का नाम है। और अनीस, मानूस को कहते हैं जिससे उन्स हो जाए, और सुभान अल्लाह ये भी सहाबी रसूल का नाम है। भावलपुर वालों ने भी 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। माशाल्लाह, ग्रेट जॉब। तीनों बच्चों ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी की, वक्त के अंदर अपना जवाब दुरुस्त दिया। इसका मतलब ये नादरीन के आखिरी 2 सेगमेंट में जाके फैसला होगा कि कौन सी टीम आगे जाती है। जनाब अब चलते हैं हम इंशाल्लाह, स्कोर बोर्ड हमें दिखा दें ताकि फिर हम आखिरी 2 सेगमेंट अपने कंप्लीट कर लें।
चश्मा जारी है कुरान के नूर। जनाब 19 नंबर मुल्तान के हैं, 18 नंबर भावलपुर के हैं, 19 नंबर ही खानपुर के हैं। यानी इसका मतलब 2 आखिरी सेगमेंट हैं। अब अगला सेगमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब जुमला दिखाया जाएगा, तीनों टीमों को 2-2 जुमले दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुरुस्त करने हैं। 30 सेकंड्स होंगे, अल्फाज आगे पीछे होंगे और जुमला दुरुस्त करना है। प्रॉपर लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, एक लफ्ज आगे पीछे कर दिया तो फिर 1 नंबर मिलेगा। बावलपुर वालों की बारी है, दिखाइए जनाब। पूरे अल्फाज कंप्लीट कीजिए। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। लेके आई 6 सेकंड्स हैं। उस पर रहम नहीं किया जाएगा जो मखलूक पर रहम नहीं करता। जो मखलूक पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। जुमला तो ये है मगर आपने अल्फाज पूरे यूज कर लिए हैं। उस पर रहम नहीं किया जाएगा जो मखलूक पर रहम नहीं करता। चूंकि अल्फाज भी पूरे हैं और मफहूम भी दुरुस्त है, अलबत्ता ये हदीस पाक है और इसमें बड़ा शानदार मैसेज है कि जो मखलूक पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। तो रहम दिल बनिए। और भावलपुर वालों का जवाब अब दुरुस्त मार रहे हैं, 2 नंबर दिए जा रहे हैं। मुल्तान वालों की बारी है, बताइए जनाब। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिसने मेरी कब्र की जियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, हदीस पाक है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हाय हाय, देखिए फिर क्यों ना मदीने जाने को तड़पे, आका खुद ही तो बुला रहे हैं ना। सुभान अल्लाह, शफाअत भी वाजिब होगी। अमीर अहले सुन्नत का शेर है ना, ज़ायरे कब्रे मुनव्वर की शफाअत होगी, है यही आपका फरमान मदीने वाले। मैं भी हूँ ज़ायरे रोज़ा ए रसूल अरबी, मुझको ना भूलना सुल्तान मदीने वाले। शेर तर्ज से सुना दें। ज़ायरे कब्रे मुनव्वर की शफाअत जनाब खानपुर वालों से अब सवाल है, जुमला मुकम्मल करना है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। नूर ही नूर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन रखो नेकी तारीफ करवाती और अजर दिलाती है। यकीन रखो नेकी तारीफ करवाती है और अजर दिलाती है। एक है जो है वो आपसे रह गया है,
तो इसलिए 1 नंबर आपको कम मिलेगा, बाकी आपका जवाब दुरुस्त है, 1 नंबर इन्हें दिया जा रहा है। अब जनाब अब बारी है फिर भावलपुर वालों की, और भावलपुर वालों को अब जुमला दुरुस्त करना है। ये आसान नहीं है, एक बुजुर्ग का कॉल है, लेकिन देखें। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक 5 सेकंड रह गए। अल्लाह, टाइम खत्म हो गया जनाब। जुमला ये था, लोगों में बड़ा सखी वो है जो ऐसे शख्स को नवाजे जिसे नवाजे जाने की उम्मीद ही ना रही हो। अब बारी है मुल्तान वालों की। वो मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी तकलीफ और अमान, जिससे उसके पड़ोसी को तकलीफ और अमान ना हो। तकलीफ और अमान ना हो। वो मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ से अमान में ना हो। अगर पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है तो फिर वो कैसा मोमिन है? तो ये मिस्टेक हो गई आपसे, आपको भी कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब बारी खानपुर वालों की है। खानपुर वालों के लिए भी जुमला आसान नहीं है जी। करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, नूर ही नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम में से बेहतरीन वो है जो कुदरत व इख्तियार के बावजूद मुआफ़ करने वाला है। लोगों में बेहतरीन माफ करने वाला वो है जो कुदरत व इख्तियार के बावजूद माफ कर दे। जुमला तो आपका भी दुरुस्त नहीं हुआ है, मफहूमन तो शायद दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ना लोगों आपने शामिल किया। अब बेहतरीन माफ करने वाला वो है, वो भी आप मिस कर गए, तो नंबर तो आपको भी नहीं दिए जाएंगे। जनाब फिर मुकाबला बहुत करीब आके रुक गया है, यानी आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि किस टीम ने आगे जाना है। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, एक बार फिर स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर फाइनल राउंड करते हैं जी। 1-2 कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। अहमद रजा तारी कश्मीर से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशा अल्लाहुल करीम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 16 अपनी बरकतें लुटा रहा है। हाजी साहब की बारगाह में ये अर्ज है कि कभी इशफाक अत्तारी साहब को भी ज़हनी आजमाइश में बतौर नात खां मौका दिया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बिल्कुल, हम मौका क्यों, हम तो उनको अपनी आंखों में बिठाना चाहते हैं, वो तशरीफ लाएं इंशाल्लाह। वैसे जदवल में उनका नाम शामिल है, उम्मीद है जरूर करम फरमाएंगे इंशाल्लाह जी। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपके प्रोग्राम में आने का बहुत शौक है। आप मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत फरमा दीजिए और मक्के मदीने की हाजिरी की दुआ भी फरमा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आपके अम्मी अब्बू के साथ बार बार मक्के मदीने की हाजिरी अता फरमाए, आपकी आपके वालिदैन की हम सब की मगफिरत फरमाए। और आप तशरीफ़ लाएँ, अगर आपको शौक़ है तो कराची जब तशरीफ़ आना हो अपने अब्बू के साथ आएँ और सिलसिले में शिरकत भी करें। चलिए जनाब देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। बढ़ते बढ़ते ये मुकाबला 21 मुल्तान, 20 भावलपुर और 20 खानपुर। तीनों टीमों से गुजारिश है कि अब अपनी अपनी जगहों पे खड़े होंगे। मुल्तान वाले चले जाएं, भावलपुर आ जाएं, भावलपुर वाले खानपुर आ जाएं, खानपुर वाले भावलपुर चले जाएं। करीब करीब शहर है, ज़्यादा किराया भी नहीं है। जल्दी जल्दी आ जाएं और आइए चलते हैं, आखिरी राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है।
5 सवाल होंगे, आपने या तो सही कहना है या गलत कहना है, उसके सिवा कुछ और नहीं कहना है। भावलपुर के रमजान अत्तारी साहब से सवाल होंगे, आप रेडी हैं? ज़बूर शरीफ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सही। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल सूरत है। गलत। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का एक लक़ब अतीक है। गलत। खतीब के लिए खुतबा देते वक्त काबे को पीठ करना सुन्नत है। सही। हजरत आयशा सिद्दीका हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबजादी नहीं थी। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जबरदस्त जनाब, आखिरी मौका है अपनी सलाहियतों के इज़हार का। रेहान अत्तारी खानपुर वालों की बारी है। मस्जिद कुबा को बैतुल मुक़द्दस से खास निस्बत है। गलत। मुसाफा करने से कीना दूर होता है। सही। मछली के पेट में हजरत नूह अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक रहे थे। गलत। किश्ती नूह जबल नूर पर आकर नहीं रुकी थी। सही। कसीदा बुर्दा इमाम बुसैरी के उस्ताद साहब ने लिखा था। गलत। कमाल है जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। जबरदस्त। अब बारी मुल्तान वालों की है। हसन बिलाल अत्तारी, मिसवाक करने से कुव्वते हाफजा बढ़ती है। सही। नमाजे जनाजा फर्ज किफाया है कि एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए। सही। आला हजरत के पीर साहब मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। कमाल हो गया जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब फिर बारी है भावलपुर वालों की और मोहम्मद फैसल अत्तारी से सवाल करेंगे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज़े फजर में 4 बार पढ़ा जाता है। गलत। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। गलत। सैयदुश शुहदा हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन का नाम शब्बीर भी रखा था। गलत। आका अलैहिस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। सही। जनाब ये भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अल्लाह अल्लाह, ये तो कमाल हो गया है। अब इसका मतलब आगे चलना होगा। मुनीब अत्तारी से बात करेंगे, मुल्तान से उनका ताल्लुक है। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। सही। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार पुरनवार अजमेर शरीफ में है। सही। इमामा शरीफ बांधकर पड़ी गई 2 रकतें बगैर इमामा वाली 70 रकतों से बेहतर हैं। सही। जोहर की कुल 14 रकतें हैं। गलत। 100 आयात का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल जनाब। अब बारी खानपुर वालों की है। मंजूर अत्तारी, लफ्ज सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं। सही। गलत। बादे मगरिब 6 रकतें मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। दुरुस्त। जनाजे को कंधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आजम की साहबजादी नहीं थी। गलत। मुस्तामल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है। गलत। अल्लाह, आखिर में इनसे गालिबन एक गलती हुई है। मुस्तामल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है, ये सही है और इन्होंने गलत कहा था। हाँ वो ठीक है। पहले वाले लफ्ज सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं, इस पे इन्होंने पहले गलत कहा और फिर सही कहा। पहले सही कहा फिर उन्होंने गलत कहा, तो ठीक है उसी दौरान कह दिया तो उनका उस जवाब को दुरुस्त माने, आखिरी वाले जवाब को गलत माने। ठीक है, यानी 4 नंबर इन्होंने हासिल किए हैं। अब तीनों टीमों का एक एक इस्लामी भाई बाकी है और 29, 30 और 31। मुल्तान 1 नंबर से आगे है, भावलपुर 1 नंबर से पीछे है, खानपुर मजीद 1 नंबर से पीछे है। यानी इन तीनों इस्लामी भाइयों पर अपनी टीम की जिम्मेदारी है। मुल्तान वालों से बाद में बात करते हैं, पहले चलते हैं भावलपुर। भावलपुर वाले कहां पहुंचे हुए हैं? यहां पर हैं। चले जनाब, बहार शरीयत के 16 हिस्से हैं। गलत। हजरत बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने खरीद कर आजाद कर दिया था। गलत। जुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का लकब नहीं है। गलत। हजरत हमजा गसील का लकब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। गलत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आपसे 2 गलतियां हो गई हैं जनाब। हजरत बिलाल हबशी को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खरीद कर आजाद किया था, ये सही था, आपने गलत कहा। और दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती, बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, लेकिन आपने उसको गलत कह दिया। तो अब जनाब खानपुर वालों की तो बारी हो गई। अब बारी है भावलपुर वालों की हो गई। खानपुर वाले कहां पहुंचे हुए हैं? यहां पर हैं। अब खानपुर वालों की बारी है।
मुस्लिम बिन हज्जाज इमाम बुखारी का नाम है। गलत। रूह कब्ज करने पर मामूर फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल है। गलत। इमाम शरीफ के शिबले की कम से कम मिकदार 3 उंगलियों के बराबर है। सही। अबू हनीफा इमाम शाफई की कुनियत नहीं है। गलत। पहली वही गारे सौर में नाजिल नहीं हुई। सही। अल्लाह अकबर, आपसे भी गलतियां हुई हैं जनाब, 2 गलतियां आप भी कर गए हैं। इमाम शरीफ के शिबले की कम से कम मिकदार 3 उंगलियों के बराबर नहीं है और अबू हनीफा इमाम शाफई की कुनियत नहीं है, ये सही था, आपने गलत कह दिया। अब इसका मतलब ये हुआ नाजरीन, खानपुर के 32 नंबर हैं, भावलपुर के 33 नंबर हैं, मुल्तान के पास बड़ा जबरदस्त मौका है। सिर्फ 3 सही जवाब अगर मुल्तान वाले दे देते हैं तो आज का मुकाबला मुल्तान वाले जीत जाएंगे। मगर क्या ऐसा तो नहीं कि मुल्तान वाले ज्यादा गलती कर जाएं? मुल्तान के इस्लाम में कहाँ मौजूद हैं? चले जनाब, भावलपुर गए हुए हैं मुल्तान वाले। राहील अत्तारी आपका नाम है, सही या गलत? सही। चले जनाब, चलें अब आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। आप रिलैक्स हैं, इजी हैं, ठीक है। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। सही। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वकूफ अरफा हज का रुकने आजम है। सही। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुल्तान वाले आज का मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। शुरू में पीछे रहे मगर बाद में शानदार कमबैक किया। मुल्तान, भावलपुर और खानपुर, कमाल का मुकाबला हुआ। मुल्तान वाले जीतकर भी अश्कबार हैं, कुछ पीछे रहकर भी अश्कबार हैं। इसी का नाम जनाब ज़हनी आजमाइश है। तीनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं, हिम्मत में रहें, इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा। अगले साल अच्छी तैयारी करके फिर आएंगे। मुल्तान वाले भी आगे आ जाएं, खानपुर और भावलपुर वाले भी आएं, आपको इंशाल्लाह तहफ़ देकर हम रुखसत करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह हमारा ज़हनी आजमाइश आगे बढ़ता रहेगा और दिलों में इल्म दीन की शमा को रोशन करता रहेगा।